So starting with a new chapter, that is a time response analysis. Now, what is time response analysis? Before understanding this, we are supposed to understand that what is an analysis. Analysis means what? To taste or to check for different conditions ऐसा बोल सकते हैं, है ना? एनालिसिस माने क्या? टू चेक और टू एनालाइज or to taste for the different conditions. Let's say for an example, जैसे कि क्या हम लोग ऐसा मानते हैं, for an example, if we made a bike, ठीक है, अभी अभी अगर हम लोगों ने बाइक बनाया हुआ है, so there can be two different kind of conditions on which you can ride a bike. ठीक है, एक होता है आपका ऑन रोड, जैसे अच्छा खासा कंक्रीट का रोड बना हुआ है, उसके ऊपर आप अगर बाइक को राइड करते हो, तो फिर सेकंड कंडीशन आप कंसिडर कर सकते हो ऑफ रोड कंडीशन, जैसे कि गांव में आपका रास्ता होता है, दैट इज अ नॉट मेड बिल्डेड और कंस्ट्रक्टेड विथ वेल pivoted surface or on the concrete road, है ना? अगर इस प्रकार की कंडीशन है तो वो क्या है आपका, दैट इज अ ऑफ रोड कंडीशन. नाउ Now, for this off-road kind of condition, as well as for the on-road kind of condition, whatever the bike we have designed, वो इधर चल सकता है कि नहीं चल सकता है, इधर चल सकता है कि नहीं चल सकता है, what will be the value of efficiency, that is also we are supposed to check. How much mileage it will given, or how much mileage it will give on the on-road conditions as well as on the off-road condition. This is all is targeted, or let's say this is all can be categorized under the analysis of bike, or let's say analysis of bike design. समझ में आ रहा है? बाइक का डिजाइन का हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस. इसके अलावा क्या, अगर आप लोग ऑन रोड हो या फिर ऑफ रोड हो, ऐसे किसी भी कंडीशन में अगर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट वाली कंडीशन में भी क्या कि आपका बाइक सही तरीके से वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा, ये भी हमें देखना पड़ता है ना? वेदर इट विल सर्वाइव ऑन द एक्सीडेंट कंडीशंस और नॉट, दैट इज आल्सो वी आर सपोज्ड टू चेक. सो दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ एनालिसिस. देन एक्सीडेंट के अलावा और क्या कंडीशंस हो सकता है जहाँ पे आपको बाइक को चेक करना पड़ सकता है, और क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं जहाँ पे हम लोग बाइक को चेक कर सकते हैं, दैट इज फॉर द फ्यूल्स, ठीक है, for the fuel, like whether you are having a petrol bike or you have made another bike which do runs on the electricity, ठीक है. अगर पेट्रोल की जगह हम लोगों ने डीजल डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, तो रन करेगा बाइक, क्या कंडीशंस होगा,
ये सभी चीज अगेन किसके अंडर में फॉल होती है? दैट डू फॉल्स अंडर द एनालिसिस ऑफ द बाइक डिजाइन. In that way, there can be different aspects, there can be different segregation, there can be different point on which we are supposed to analyze our design. ठीक है, समझ में आ रहा है? So that is what we do mean by the analysis. This is what do we understand with the what is analysis. Now when we do say the time response analysis, इसका क्या meaning होता है? Let's try and understand. Let's say if we are talking about any of the control system, if we are talking about any control system, what we do understand for a control system is that there will be one of the input inside of the bracket of the system can definitely show the transfer function of the system, right? Here there will be a transfer function of the system. Definitely there will be the input over here on the one hand, and you can have the output on the another hand of the particular block. Now this particular input generally we do consider that as in the R of S. That means this is nothing but a Laplace transform form. But this particular Laplace form, let's say कि output में भी हम लोग क्या consider करते हैं? C of S. That is again a Laplace form, right? Now this Laplace form of R of S and C of S, where they come from? That is from the time domain terminology or time terminology. That is R of t, such that the Laplace transform of R of t will be equivalent to capital R of S. सेम वे यहाँ पे भी सेम होगा ना कि Laplace transform of C of t that will be equals to C of S. समझ में आ रहा है? सो अल्टीमेटली अगर हम लोग किसी भी इनपुट की बात करते तो वो कैसा इनपुट होगा? इनपुट इन दी टाइम डोमेन एंड आउटपुट इन दी टाइम डोमेन. नाउ व्हाट वी डू अंडरस्टैंड बाय दिस इनपुट इन दी टाइम डोमेन एज वेल एज आउटपुट इन दी टाइम डोमेन. So let's consider any of the control system which we have studied earlier. Let's say for a electrical control system, let's say what we have studied कि यहाँ पे एक input होगा. For this particular input, let's say एक resistance लगा हुआ है यहाँ पे, एक capacitance हम लोगों ने यहाँ पे लगा होगा, and from these 2 points we are having the output for this. Let's say कि यहाँ से आपका input होता है Vi of t, यहाँ से आपका जो आउटपुट है उसको हम लोग बोलते हैं V output of t. Now why we are writing down t over here inside of the bracket? That is because कि अगर हम लोग इनपुट वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करवाते तो इनपुट वोल्टेज का ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा आपका? लेट्स से on the x axis we can consider the time t, and on the y axis we can consider the value of Vi. Okay. So as soon as the time is zero, maybe let's say कि आपका वोल्टेज का वैल्यू भी जीरो है, ठीक है. as soon as टाइम का वैल्यू 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6 एंड सो एंड सो फॉर. जैसे जैसे टाइम का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग आपका वोल्टेज का वैल्यू कुछ चेंज हो सकता है. And as you are having certain value of voltage according to the value of R and C over here, you will get the value of output voltage as well. है ना? जैसे कि again we can consider the time t on the x axis and y axis पे हम लोग ले सकते हैं V O का वैल्यू या फिर V output का वैल्यू. Again you can have the value of time t is equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on and so forth. And according to the value of input voltage,
However, the value of R and C will manipulate this value. You can have the change in the output voltage. But what we are supposed to understand is that the value of input voltage do depends on the variable time t, as well as the value of output voltage do depends on the variable time t. समझ में आ रहा है? So accordingly, what we do say, this both the input as well as the output, they are nothing but in the time domain. Both this input and output do exist in the time domain for the big time drive. समझ में आ रहा है? ये क्या है आपका टाइम डोमेन के वेरिएबल्स है, ठीक है. नाउ फॉर द एनालिसिस पर्पसेस, लेट्स से कि अगर इफ वी डू राइट डाउन formula for V I of t and the output of t, it will be somewhat like this. Vi of t, that is nothing but equals to R into, let's say, the current which is flowing through the circuit I of t plus 1 upon C integration of it dt. This can be the formula for input voltage, and same way output voltage का formula सीधा सा आपका होगा 1 upon C integration of it dt. Now I am not going into the depth of this derivation कि कैसे ये formula है, but समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे दोनों जो formulas है आपके input और output की, ये कैसे complicated formulas है, and that's why we do apply the Laplace transform on them so that we can convert these formulas into the V I of S, that is equals to R plus 1 upon Cs whole multiplied with I of S, and the output of S, that is equals to 1 upon Cs whole multiplied with I of S, such that the output of S divided by the input of S, that will be equals to 1 upon 1 plus RCS. This is what we have derived earlier in the previous classes. ठीक है. So कहने वाली बात क्या है यहाँ पे कि अगर हम लोग इन फॉर्मूलाज को लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा के क्या करते हैं, अगर इनको कन्वर्ट करते हैं, दैट इज व्हाट, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगा तो इसका मीनिंग क्या होता है, हम लोग यहाँ पे टाइम डोमेन के वेरिएबल्स को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करवा के लाप्लास डोमेन में लेके जाते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करना माने क्या, दिस इज नथिंग बट अ ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, दिस इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द टाइम डोमेन टू द लाप्लास डोमेन. नाउ व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन मींस is that the, see, you might have studied this in your previous classes or maybe in maths classes, that कि अगर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो इट कैन बी रिटन समवट लाइक दिस कि x, y. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़े हो ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x, y. अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसको सिंपली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप टू डिमेंशनल प्लेन कंसीडर कर सकते हो, है ना. यहाँ पे ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पे ये हो गया आपका वाई एक्सिस. लेट्स से कि एक्स कॉमा वाई का वैल्यू आपके पास जैसे कि 1 कॉमा, तो हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है 0 कॉमा 0. यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 1, यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 2, 3, 4. सेम वे -1, -2, -3, -4. ठीक है, यहाँ पे आपका y का वैल्यू होगा जैसे कि 1, 2, 3. यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन में -1, -2, -3. हमें क्या पॉइंट चाहिए, 1,2. तो x का क्या वैल्यू लेने का, 1. ठीक है, तो x का वैल्यू लिया हम लोगों ने 1.
y का वैल्यू क्या लेने का 2, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते ये वैल्यू क्या हो गया या फिर ये पॉइंट क्या हो गया, दैट इज नथिंग बट 1 कॉमा। समझ में आ रहा है? अभी यही पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, है ना। दिस इज वन ऑफ द मेथड टू रिप्रेजेंट दिस पॉइंट, दैट इज x कॉमा y। सेकेंड मेथड इसका क्या हो सकता है, दैट इज नथिंग बट, लेट्स से कि see again I am drawing the plane over here, मैं प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले तो, और इसी पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ऑन द x एक्सिस वी आर हैविंग द वैल्यू 1, on the y axis we are having the value 2, and this is what we do have point, that is 1 comma 2। now यही पॉइंट को दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, that is from the polar coordinates, that is with the polar coordinates। let's say this is the line which do connects the point 0 comma 0 or let's say origin and 1 comma 2। तो ये कोई एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर होंगी, जैसे कि दिस इज एट द एंगल थीटा, एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, ये लाइन का लेंथ क्या हो सकता है, तो दैट वी कैन सिंपली फाइंड आउट कि ये आपका रहा लाइन, है ना, ये उसका वाई वाला बाजू है और ये उसका एक्स वाला बाजू है। तो एक्स वाले बाजू की लेंथ कितना है हमारे पास 1, ये वाई साइड का लेंथ क्या है हमारे पास 2, तो इसका लेंथ क्या होगा, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5। समझ में आ रहा है? तो इसी पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एट दिस that is nothing but equals to r at an angle theta, that is nothing but equals to under root of 5 at a certain angle theta। अभी इसका क्या मीनिंग होता है ये समझो, है ना, ये पॉइंट को ऐसे कैसे हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया, तो समझो कि अगर आपका कोई एक प्लेन है ना, तो ये पर्टिकुलर प्लेन के अंदर अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि रेडियस दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5, मान लो जैसे ये रेडियस है हमारा अंडर रूट ऑफ 5 जितना, दिस इज दिस पर्टिकुलर लेंथ इज नथिंग बट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5। ये अंडर रूट ऑफ 5 डिस्टेंस के ऊपर ये पर्टिकुलर प्लेन में कितने सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि भैया इतने सारे, ठीक है। ये अगर हम लोग सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस कितना है अंडर रूट ऑफ 5, तो सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी यहाँ पे पूरे सर्कल के ऊपर सभी के सभी पॉइंट्स कैसे आपका अंडर रूट ऑफ 5 डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। फिर उसमें से मुझे क्या करना है, मुझे ये पर्टिकुलर एक पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये जो एक पॉइंट है यहाँ पे इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है इतने सारे पॉइंट्स के अंदर से, जो आपका सर्कल के अंदर है उसमें से, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज सिंपली विथ दिस पर्टिकुलर एंगल ओवर हियर। मान लो जैसे कि ये एंगल का वैल्यू जैसे कि आपका 45 डिग्री, तो इसका मतलब क्या, रूट 5 रेडियस के साथ एक्स एक्सिस से 45 डिग्री के ऊपर तो सिर्फ ये अकेला पॉइंट ही हो सकता है। तो ऐसे करके हम लोग क्या इन्फिनिट नंबर्स ऑफ पॉइंट जो कि ये रेडियस रूट 5 के ऊपर, उन सभी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि क्या, कि रेडियस रूट 5 एट एन एंगल 45 डिग्री के ऊपर अलग पॉइंट होगा, रेडियस रूट 5 एट एन एंगल 45.1 डिग्री के ऊपर अलग पॉइंट होगा, रेडियस रूट 5 एट एन एंगल 90 डिग्री के ऊपर अलग पॉइंट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे पॉइंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर सर्कल हैविंग द रेडियस अंडर रूट ऑफ 5, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे करके तो सारे प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि क्या, कि रेडियस का वैल्यू अभी आप लोगों ने रूट 5 लिया, इसकी जगह आप रेडियस का वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, जैसे कि 1 ले सकते हो, 1.1 ले सकते हो, है ना, 0.1 ले सकते हो, चाहे तो आप 15.5 भी ले सकते हो, चाहे तो आप इंफिनिटी भी ले सकते हो, है ना। तो कोई भी रेडियस का पॉइंट ले सकते हो, और इन सारे रेडियस के लिए क्या, अगेन यू कैन टेक द डिफरेंट वैल्यूज, जैसे कि 1 एट एन एंगल 0, 1 एट एन एंगल 0.1, 1 एट एन एंगल 0.2। समझ में आ रहा है? सो दिस इज कॉल्ड एज एन द पोलर कोऑर्डिनेट्स। दिखाता तो ये भी सेम ही चीज है, जैसे कि क्या, कि जो पॉइंट हम लोगों ने ऐसे दिखा है यहाँ पे 1,2 करके, उसको यहाँ पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज विद द साइन अंडर रूट ऑफ 5 एट एन एंगल थीटा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज नथिंग बट वन एंड सेम थिंग।
बस फर्क इतना है कि दोनों का डोमेन अलग अलग है, बट चीजें आपका एक जैसा ही है। सेम चीज यहाँ पे समझना about the time domain and the Laplace domain to understand the same thing, that either you are representing these formulas vi of t and v output of t in the time domain, either you are representing these formulas as in the vi of s and v output of s in the Laplace domain। आपका फॉर्मूला, आपका जो सिस्टम है वो सेम का सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता सिस्टम के अंदर, ठीक है। बस आपका उसको रिप्रेजेंट करने का डोमेन चेंज होता है फ्रॉम द टाइम डोमेन टू द लाप्लास डोमेन। अभी करना क्यों है ऐसा, दैट इज बिकॉज कि टाइम डोमेन में आपके जो फॉर्मूलाज है वो काफी ज्यादा हार्ड टू सॉल्व है कंपेयर टू द लाप्लास डोमेन। जबकि लाप्लास डोमेन में आप फॉर्मूलाज देखते हो तो कंपैरेटिव टू द टाइम डोमेन द फॉर्मूलाज आर इजी टू सॉल्व। समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ एज वी हैव अंडरस्टूड कि भाई लाप्लास डोमेन क्या होता है, टाइम डोमेन क्या होता है। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टाइम डोमेन एनालिसिस? इज सिंपली समवॉट लाइक दिस कि जब भी हम लोग किसी भी एक सिस्टम की बात करते हैं, टाइम डोमेन एनालिसिस माने क्या कि अगर मैं एक सिस्टम को ड्रॉ करता हूँ तो ये कैसे बनेगा आपका, जैसे कि इनपुट हो गया आर ऑफ टी, दैट इज द इनपुट फॉर द सिस्टम, है ना। ये आपका सिस्टम आ गया जैसे कि हैविंग सर्टेन ट्रांसफर फंक्शन, and from the system we are having the output, let's say the c of, now for this particular system अगर मैं यहाँ से कोई भी एक इनपुट देता हूँ, जैसे कि हमारा कुछ आर ऑफ टी का वैल्यू ऐसा है कि दिस इज द टाइम टी एंड आर, मैंने कुछ एक ऐसा इनपुट जनरेट करके दिया सिस्टम को, तो सिस्टम का आउटपुट क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट, whether the output will be the stable one, whether the output will be the unstable one, either it is a marginal stable, स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, ये फिगर आउट करने का इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट द टाइम डोमेन एनालिसिस। मतलब टाइम डोमेन के अंदर रहते हुए या फिर सिस्टम को टाइम डोमेन से लाप्लास डोमेन में ले जाके वहां पे एनालिसिस करके वापस से टाइम डोमेन में लेके आते हैं हम लोग, तो इस प्रकार के एनालिसिस को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम डोमेन एनालिसिस। बेसिकली टाइम डोमेन एनालिसिस से क्या मीन करते हैं हम लोग कि वी वांट टू चेक whether our system or our design system do works properly for all the kinds of possible inputs। ठीक है, क्या हम लोग मीन करते हैं टाइम डोमेन एनालिसिस से, दैट वी वांट टू चेक whether our system or design system do works properly for all the kinds of possible inputs। now इससे क्या मीन करते हैं all the kinds of possible inputs से, ये समझो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि हम लोगों ने वी हैव डिजाइन और लेट्स से कि देयर इज अ एयरक्राफ्ट, दैट इज सम इंजीनियर डिजाइन, फॉर एन एग्जांपल एयरक्राफ्ट डिजाइन किया है किसी ने, ऐसा हम लोग मानते हैं। अभी एयरक्राफ्ट का प्रॉपर्टी क्या है, एयरक्राफ्ट बोल दो चाहे एरोप्लेन बोल दो, एयरक्राफ्ट या तो फिर एरोप्लेन का प्रॉपर्टी क्या रहता है, या फिर एयरक्राफ्ट या फिर एरोप्लेन के लिए हम लोग क्या वर्किंग कंडीशंस कंसीडर कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट कि भैया एक तो जब ये जमीन के ऊपर रहता है तब, दैट इज ऑन द लैंड, एंड सेकंड कंडीशन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ऑन द एयर। दोनों कंडीशन में क्या रहता है कि अगर लैंड के ऊपर रहता है तो जब उसको टेक ऑफ करना पड़ता है तब कितना स्पीड चाहिए, व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ विंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम,
कितना थ्रस्ट इसको पैदा करना पड़ेगा, ठीक है। सेम वे ऑन द एयर कंडीशन, है ना, अलग अलग कितने अल्टीट्यूड के ऊपर आपका प्लेन जा रहा है, ठीक है। देन ऑन दैट पर्टिकुलर अल्टीट्यूड व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर एयर, मतलब एयर कितना आपका पतला हो सकता है, ठीक है। उस टाइम के ऊपर कितना आपको थ्रस्ट पैदा करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन क्या हो सकते हैं फॉर द ऑन दी एयर। सो इफ एट ऑल वी कैन ड्रॉ अ सिस्टम ऑफ एयरक्राफ्ट। इसका सिस्टम कैसे ड्रॉ होगा, जैसे कि ये अगर आपका एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपके मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं। जैसे कि क्या क्या अलग अलग इनपुट्स हो सकते हैं, कि एयर प्रेशर, एयर थिकनेस, देन लेट्स से कि अल्टीट्यूड of the plane, then thrust, then you can consider the turbulence and many more, you know, and many more. So for all of this inputs according to the different conditions of the plane, कि कहीं पे वो डेजर्ट के ऊपर से फ्लाई कर रहा है, कहीं पे वो प्लेन आपका सी लेवल्स के ऊपर से फ्लाई कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या, कि जो आपका एयर का प्रेशर रहता है, थिकनेस रहता है, अल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग वो चेंज होता है, आपका थ्रस्ट का वैल्यू अलग होता है, टर्बुलेंस हो सकता है कई बार। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हर एक बार प्लेइंग का जो वर्किंग कंडीशन रहता है या फिर वर्किंग एनवायरनमेंट रहता है वो आपका चेंज होता है, ठीक है। सो ऐसे कंडीशन में क्या हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर ऑल ऑफ दिस कंडीशन whether our aircraft will survive, whether it will work stably or not, this is what we want to find. एंड अकॉर्डिंगली हम लोग प्लेन को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली उसका जो भी आउटपुट है उसको फिगर आउट करने का ट्राई कर सकते हैं। अभी ऐसा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप एयरक्राफ्ट बनाओ, जैसे कि ठीक है कि किसी एयरक्राफ्ट को बनाने का खर्चा आपका करोड़ों रुपए में जा सकता है, ठीक है। तो वर्किंग कंडीशन को चेक करने के लिए हम लोग ये नहीं कर सकते कि एयरक्राफ्ट आप पूरा का पूरा बना लो फिर उसको अलग अलग जगह पे उड़ाओगे, तो जो उड़ाने वाला बंदा है अगर फेल हो गया प्लेन उड़ने का तो वहीं पे मर जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन डू is simply that we can create a model for this particular aircraft, can make a model or maybe a simulation, maybe a simulation such that कि ये आपका पूरा का पूरा वर्कआउट करेगा इन एनी कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो कि इसी जो वर्किंग मॉडल या फिर जो आपका सिमुलेशन फाइल है उसके अंदर ये सारे के सारे डिफरेंट जो भी इनपुट्स है हमारे पास उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, एंड ऑन द एप्लीकेशन यू कैन फिगर आउट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट द एनालिसिस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार का जो भी सिस्टम होता है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। अगर ये एनालिसिस आपका टाइम डोमेन में रहता है या फिर टाइम डोमेन के इनपुट के लिए अगर हम लोग टाइम डोमेन का आउटपुट फिगर आउट करते हैं तो इस प्रकार के एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं जैसे कि टाइम डोमेन एनालिसिस। नाउ टू डू द टाइम डोमेन एनालिसिस, pay attention, to do the time domain analysis, we require an input,
हमें क्या चाहिए, एक इनपुट चाहिए या फिर इनपुट्स चाहिए अलग अलग प्रकार के। अभी इनपुट से क्या मीन करते हैं समझो, जैसे कि कोई एक सिस्टम है आपके पास, लेट्स कंसीडर अ सिस्टम which is having input and output। अभी इनपुट प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या क्या हो सकता है आपका, वो हम लोग नहीं बोल सकते यहाँ, या फिर हम लोग इसको स्टेट नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया समथिंग विच इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल्स। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल्स। बेसिकली स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल्स आपके चार अलग अलग प्रकार के होते हैं, या फिर चार अलग अलग प्रकार के इनपुट्स जो होते हैं उसको हम लोग स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल्स बोलते हैं। पहला होता है आपका यूनिट इनपुट, दूसरा होता है आपका रैंप इनपुट, तीसरा होता है आपका पैराबोलिक इनपुट, और चौथा होता है आपका दैट इज द इंस्टेंटेनियस इनपुट। नाउ फॉर ऑल ऑफ दिस फोर डिफरेंट इनपुट्स, अभी इसके नाम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत करो, जब टाइम आएगा तब इसको ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। फॉर द टाइम बीइंग यू कंसिडर कि ये जो यूनिट इनपुट है इसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं जेड, इसको बोलते हैं जैसे कि आई। ठीक है, सो इफ पेयर अटेंशन ऑन द सेंटेंस, if we do add all the standard taste input signals in proper proposition, we can achieve any of the input possible। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या लिखा, कि अगर हम लोग ये जो स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल्स है इनको एक प्रॉपर प्रपोजिशन में ऐड करवाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी आपका दुनिया में जो पॉसिबल इनपुट है उसको हम लोग आ, बना सकते हैं। जैसे कि क्या, कि अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं कि a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इंटू जेड प्लस डी इंटू आई, where you can change the values of A, B, C and D, or let's say the A, B, C, D are nothing but certain constants। So in that way अगर इसका समेशन करते एक प्रॉपर प्रपोजिशन के अंदर, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी इनपुट जो कि आपका वर्ल्ड के अंदर पॉसिबल है इसको अचीव करवा सकते हैं। नाउ बाय डूइंग दिस व्हाट वी कैन से, कि जैसे आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल इनपुट मान लो, जैसे कि ये पर्टिकुलर सिस्टम का अगर कुछ ऐसा है, जैसे कि कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, तो ये टेढ़ा मेढ़ा इनपुट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड और आई को एक प्रॉपर प्रपोजिशन में ऐड करवा के ये सिग्नल को भी हम लोग अचीव करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है? सो कहने वाली बात क्या है यहाँ पे, इज दैट for any system
if we do apply all standard test input signals and for all the input if system be stable, so we can say that for any combination of all this input, system will survive or be stable. ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझो कि फॉर एनी सिस्टम जिसको हमें टेस्ट करना है या फिर जिसका हमें एनालिसिस करना है, सो फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम अगर हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल्स को अप्लाई करते हैं और ऐसे कंडीशन में फॉर ऑल द इनपुट अगर आपका सिस्टम स्टेबल रहता है ना, सारे स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल्स के लिए अगर आपका सिस्टम स्टेबल रहता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि चाहे ये स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल का कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, तो हर एक के कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है दैट विल बी स्टेबल। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि आपने सिस्टम के ऊपर, अगर ये आपका सिस्टम है ना, आपने सिस्टम के ऊपर बारी बारी से क्या किया, पहले एक्स अप्लाई किया, फिर वाई अप्लाई किया, फिर जेड अप्लाई किया, फिर आई अप्लाई किया, सभी के लिए सिस्टम क्या बन रहा है आपका, स्टेबल। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि चाहे अभी इसके ऊपर ए इंटू एक्स कर लो, बी इंटू वाई कर लो, प्लस सी इंटू जेड लगा लो, प्लस डी इंटू आई कर लो, इसका कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, हर एक बार जब आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो आपका सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा, वो होगा आपका स्टेबल। बिकॉज हर एक इनपुट के लिए आपका सिस्टम कैसा रहता है, स्टेबल रहता है। समझ में आ रहा है? So that's why all of these inputs, that means x, comma y, comma z, comma I, they are nothing but called as the standard test input signals. ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों इसको स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल्स बोलते हैं? क्योंकि इसका कोई भी आप प्रॉपर प्रपोजिशन करो तो उसके अकॉर्डिंग आपको, आप लोग क्या कर सकते हो कि किसी भी एक इनपुट तक पहुंच सकते हो, जो कि पॉसिबल हो सकता है। और अगर इन चारों इनपुट के लिए अगर आपका सिस्टम स्टेबल हो गया तो इसका मीनिंग क्या होता है आपका, कि आपका सिस्टम प्रॉपरली स्टेबल है, जो कि हर एक कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। ठीक, समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें किसी को? चलो ठीक है, और क्या करते हैं आज यहाँ तक हमारा लेक्चर रखते हैं, इससे आगे का नेक्स्ट टाइम करते हैं।